What's up, guys? Hope you are well. This is YBS this side, and welcome to another training at Fitness Business Accelerator. Those who don't know me, here on this page, on this YouTube channel, we talk about how to hit 10 lakh rupees a month as an online fitness coach. And those who don't know me, my name is Yashwardhan Swami. My main business is Trained by YBS, where we help coaches start where we help people make it the last time they are dieting. My own journey started with me losing 44 kgs. Then I started Fitness Business Accelerator to help coaches start and scale their fitness business to 1 to 2 crore rupees per annum. So today's training is actually a review of what is happening in 2025. And if you are a coach or if you have been a coach for more than 7 months now, you would know this. 2025 is the hardest year for online fitness coaches. And I'm not saying that fear mongering create करने के लिए या आपको ये कहने के लिए कि oh buy my service. Not really. In this detailed video we'll explain you क्यों हो रही है ये चीज and what is the solution for that. And right now, this is moving, the industry is moving so fast कि 2024 दिसंबर तक भी जो चीज वर्क कर रही थी वो आज नहीं वर्क कर रही. And how do I know that? I'm all working with so many coaches closely to get their business to this level, right? So we'll understand why is this problem happening and how do we solve that, and that is all. So this is a detailed analysis of the market scenario in 2025 and exact steps you need to take to scale to the next level. One second. Okay, so I will some issue with this. It's working now. Okay. Okay, so before anything, I would like to tell you my fitness business story and industry story, 2017 to right now. Why 2017? Because I started my own business in 2017. 2017 में था मजाक. Because उस टाइम पे फिटनेस इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी. If you were there were few coaches. I was one of the first coaches. If you were there and if you were doing well in the sense कि आपके पास थोड़ी सी भी knowledge थी, थोड़े से भी results थे, you would get clients online. People were a little skeptical at this stage because this time industry nahi thi, but there are always some people in the population who are ready to take risks or take experiences. So online coaching clients लाना बहुत आसान था because Instagram भी new था, content भी reach next level थी, और industry में भी इतना कोई कोई लोग नहीं थे. 2020 में क्या हुआ? COVID. COVID में क्या हुआ? Lot of people started lot of coaches had to move online from offline because of COVID lockdown and everything else. उस टाइम पे क्या हुआ? So lot of people were at home. So बहुत सारे लोग थे जॉब कर रहे थे who were interested in the fitness industry, but वो घर work from home start हो गया या उनकी जॉब छूट गई या whatever. They started becoming online fitness coaches. So this year led to the rise of online fitness coaching industry, which is a good thing because इस पार्ट पे क्या हुआ? अच्छे कोचेस भी राइज होने लग गए. अच्छे कोचेस की कमी थी उससे पहले तक 2020 तक. अच्छे कोचेस स्टार्टेड इंक्रीजिंग. दिस वाज अ गुड थिंग एंड अ लॉट ऑफ बिजनेसेस बूम्ड. कोविड के टाइम पे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा बिजनेस भी नीचे जाएगा, बट बिजनेस भी ऊपर गया because people had no option apart from taking online coaching, and when they took online coaching they realized कि it's good. इससे पहले लोग skeptical थे काफी, बट अगर when they were like okay यार मेरी हेल्थ में सब हो रही है, घर पे बैठे हैं, वेले बैठे हैं, there's a coach who's saying हम ऑनलाइन ही हम आपको डाइट और वर्कआउट देके करवा सकते हैं ट्रांसफॉर्म while you are at home, why not? So industry went up. That is good. अब 2020 के बाद एक और चीज हुई that Instagram reach started going down. Instagram reach started going down. Ad cost started going up. ये 2020-21 के आसपास होना स्टार्ट हो गया. 2020 में एड कॉस्ट वगैरह कम ही थे बिकॉज मोस्ट कोचेस लाइक मी आल्सो वी वर नॉट यूजिंग एड्स एट ऑल. 2022 में क्या हुआ? देयर इज समथिंग कॉल्ड मार्केट सोफिस्टिकेशन, वो होनी स्टार्ट हुई. आई विल एक्सप्लेन दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड. बट 2022 में क्या हुआ कि यहाँ 2020 तक यू जस्ट हैड टू बी अ गुड कोच, एवरेज कंटेंट, एंड you'll get clients. 2022 में क्या होगा? You need to be a good coach. You need to be very consistent on social media, and you need to have results.
गुड कोच, कंसिस्टेंसी एंड रिजल्ट्स। 2022 में ये था, इस वाले पार्ट में थोड़ा सा, इस वाले पार्ट में भी बहुत इजी था। आपने बस कंसिस्टेंट रहना है कंटेंट वगैरह के साथ, अच्छे फ्रेमवर्क्स यूज करने एंड एवरीथिंग एल्स। बाय द वे, 2021 में आई स्टार्टेड एफबीए, एंड यू नो आई, instead of just working on my business, I started working on other businesses also, and that's when I that's how I know these things very closely, because a lot of times people are like, yeah, 2022 में आपका business तो grow कर ही गया था, 2021 में you gifted your dad a car, that means आपका business already एक level पे था। Yes, that's there, but ये जो मैं आपको details बता रहा हूँ, this is based off my knowledge from my coaching clients also, right? 2023 में पहली बार क्या हुआ, इंस्टाग्राम रीच और नीचे चली गई। कोचेस बढ़ रहे हैं, हर दूसरा बंदा जो जिम जाता है वो कोच बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंस्टाग्राम रीच डाउन होने लगी, और इस वाले पार्ट पे मैं पर्सनली कंटेंट पोस्ट करके बोर होना स्टार्ट हो गया। सो आई स्टार्टेड रनिंग एड्स अराउंड जुलाई अगस्त ऑफ 2023, एंड दिस वाज आल्सो अराउंड माय मैरिज टाइम। अपनी गर्लफ्रेंड को उस टाइम प्रपोज कर रहा था एंड एवरीथिंग एल्स। तो उस टाइम पे आई वाज लाइक, आई डोंट वांट टू क्रिएट कंटेंट, सो आई स्टार्टेड रनिंग एड्स एंड स्टफ लाइक दैट। 2024 एंड 25, अब क्या हुआ है, मार्केट बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेट हो गई है, एंड ऑल द सेवन थिंग्स। अर्लियर क्या होता था कि यार मैं सिर्फ क्लाइंट्स को अपने बोलता था ये फ्रेमवर्क फॉलो कर लो एंड you'll get results no matter what. Now that's not working. Frameworks have to go in depth of everything and everything else, which I'm going to share in this training. So 2024 और 25 में क्या हुआ कि it's very hard to get clients if you are not doing things the right way. And today I'm going to teach you how to do things the right way to get your business to 10 lakh rupees a month. So let's get this rolling and let's get the ball rolling. And I'll also try to sort out this thing. One second. Okay, sorted now. Okay. सो फर्स्ट थिंग इज कि अब आपका कस्टमर है एजुकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड। अब मैंने आपको पहले पूरी राम कहानी सुना दी है 2017 टू नाउ। अब हुआ क्या है कि इन इंडिया लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी टेकन ऑनलाइन कोचिंग। इधर ऑनलाइन कोचिंग लेके उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, दे आर हैप्पी, or they have taken online coaching and they have had a bad experience. Now, if someone has had a bad experience, what happens? The person trusts other coaches with difficulty. मतलब ट्रस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो गया अब कोचेस के लिए। सो दैट इज द वन थिंग व्हिच हैज हैपेंड। सोफिस्टिकेटेड अब थोड़ा हैवी वर्ड लगेगा, बट इन सिंपल टर्म समझा देता हूं मैं। कस्टमर आपका जितना ज्यादा नॉलेजेबल या अवेयर होगा उतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होगा। जितना नॉलेजेबल है आपका कस्टमर, उतना ज्यादा वो सोचेगा कि आपको कुछ नहीं पता। इन सिंपल टर्म्स, राइट? तो सोफिस्टिकेशन की लेवल बहुत हाई हो गई है। क्यों? अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर आप फैट लॉस कोच हो तो आपको एक प्रिंसिपल पता होगा, कैलोरिक डेफिसिट नाम का। 2020, 21, 22 तक 80% लोगों को ये चीज नहीं पता थी। इन 2025, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल डू यू थिंक ऑन इंस्टाग्राम नो कि कैलोरिक डेफिसिट क्या होता है? तो बैक इन द डे अगर आप कैलोरिक डेफिसिट की बात करते तो वो चलता। इन टूडेज टाइम अगर आप कैलोरिक डेफिसिट की बात करोगे नहीं चलेगा, बिकॉज कस्टमर वुड बी लाइक, आई ऑलरेडी नो, राइट? सो योर कस्टमर इज बिकमिंग एजुकेटेड। कस्टमर एजुकेशन कैसे बढ़ती है? कंटेंट। कितने सारे अच्छे लोग हैं जो अच्छा कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, अच्छे कोचेस, थाउजेंड्स, थाउजेंड्स। एंड उस उसमें भी क्या, लॉट ऑफ देम, इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू स्पीक ऑन कंटेंट, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू प्रेजेंट द कंटेंट। सो सम पीपल आर नेचुरल कंटेंट क्रिएटर्स, सो दैट इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट, राइट? एंड दैट्स व्हाट। सो ये समझो कि कस्टमर आपका सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, उसके साथ क्या करना है, एक्सप्लेन दैट। बट जितना ज्यादा कस्टमर सोफिस्टिकेटेड होता है उतना ज्यादा उसको कन्विंस करना डिफिकल्ट होता है। अब एक प्रॉब्लम क्या है हमारी इंडस्ट्री में, मोस्ट ऑफ यू गाइस हैव सिमिलर साउंडिंग स्टफ, एंड फैक्ट ऑफ द मैटर इज बिटवीन यू एंड मी एंड एवरीवन एल्स, सर्विस तो काइंड ऑफ बेस सेम ही रहता है। आप डाइट दोगे, वर्कआउट दोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट पीपल वुड पे यू फॉर फैट लॉस, राइट? डाइट वर्कआउट दोगे, लाइफस्टाइल दोगे,
Now, how do we stand out? How do we differentiate when the customer has already taken a service like this, has already seen some ad like this, and everything else? So, पहली चीज आपने जिससे फाइट करना है is customer sophistication. I'll share the pointers with you after this. N- Another thing which has happened in this industry right now is organic reach is dead. ये 2023-24 की स्टार्टिंग में मैंने देखना स्टार्ट कर दिया था until unless you are a great content creator, organic reach आपकी गई है, right? What is the problem with that? The problem is that, if you stick to organic, your business would be unpredictable and it would be based off Mark Zuckerberg's mood. Part one is that. पार्ट टू ऑफ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि 2024 की स्टार्टिंग तक ये नहीं थी बिकॉज ओनली फ्यू पीपल वर रनिंग एड्स सो इफ यू वर रनिंग एड्स द राइट वे विद राइट प्रिंसिपल्स काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स वी टॉट यू वुड बी गुड बट अब क्या हो गया हंड्रेड्स ऑफ कोचेस आर पोस्टिंग एड्स राइट एंड एड्स कॉपी पेस्ट करना सबसे इजी चीज है उसकी वजह से क्या हो गया है ट्रस्ट कम हो गया अब ये ट्रस्ट कब कम हुआ है 24 दिसंबर के बाद 24 दिसंबर तक चीजें चिल थी और अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक चिल थी बट नाउ इन 2025 दिस हैज बिकम अ बिग प्रॉब्लम another problem which is happening right now so अब समझो the issue with ads and low trust in ads is कि जब जब आप ad रन करते हो आपकी जेब से पैसे लगते हैं और ऑर्गेनिक जब आप कंटेंट बनाते हो आपके टाइम लगता है दोनों चीजें लो हैं राइट सो इसलिए वी नीड अ बुलेट प्रूफ सिस्टम right? And don't think I'm a sadist because I'm laughing right now. But this is what is happening right now. Next is everyone sounds the same. अब समझो आपको मैंने मार्केट सोफिस्टिकेशन वाली प्रॉब्लम बताई थी ओरिजिनलिटी की कमी है आपके पास क्या नहीं है डिफरेंशिएटर कोई आप प्रोडक्ट बनाते हो ना उस प्रोडक्ट बनाते हो ऐप बनाते हो उसमें अपने आप को डिफरेंशिएट करना थोड़ा इजी है बिकॉज यू कैन बिल्ड समथिंग ऑन योर ओन री इन्वेंट द व्हील कोचिंग में कैसे करोगे बिकॉज आपके कस्टमर को भी पता है मुझे भी पता आपको भी पता इन दी एंड डाइट वर्कआउट लाइफस्टाइल हाउ डू यू साउंड पार्ट वन ये इस सर्विस सर्विस सिमिलर है सबकी दूसरा कंटेंट सिमिलर है थर्ड ब्रांड ब्रांड सिमिलर है कंटेंट और ब्रांड क्यों सिमिलर है बिकॉज आप लोगों ने किसी और अच्छे कोच को देखा उसको कॉपी कर लिया या आपने तीन चार अच्छे कोचेस को कॉपी कर लिया इवेंचुअली क्या होता है जो ओरिजिनलिटी लोगों को पता लग जाती है कहां से है एंड क्या हुआ है ये जो सोफिस्टिकेशन हुई है सिर्फ नॉलेज के फ्रंट पे नहीं हुई है या सर्विस लेने के फ्रंट पे नहीं हुई ये कंटेंट कंजम्पशन के फ्रंट पे भी हो गई है तो पीपल विद इन सेकेंड्स रियलाइज व्हाट इज ओरिजिनल व्हाट्स नॉट राइट तो ये इशू आ गया सो एवरी कोच साउंड्स द सेम 22 तक क्या था 2022 तक क्या था कि इवन इफ सम कोचेस वर साउंडिंग द सेम इट वाज फाइन बट अब 10x अगर 100x हो गए कोचेस पहले से और सारे इफ एवरीवन इज साउंडिंग द सेम फॉर नॉट 1 to 1 year 3 years don't you think the person would know or the person would ignore someone who's not on you चलो अब आपको एक एग्जांपल देता हूं कि why you should differentiate there is a book from Seth Godin called Purple Cow सिंपल सा प्रिंसिपल है आपको बड़ी इजीली समझ आएगा you travel every day and you see hundreds of cows every day would you remember a cow सारी काउ सिमिलर लग रही नहीं बट यू ट्रैवल एवरी डे बट आपको रोज रास्ते में एक पर्पल कलर की काउ दिखती है पर्पल काउ वुड यू रिमेंबर द पर्पल काउ द आंसर इज यस बाय बिकॉज इट्स डिफरेंट सो इसलिए आपको डिफरेंशिएटर होना जरूरी है डिफरेंशिएटर किस बेसिस पे फाइंड हो सकता है हु यू आर यू सर्विस एक्सपर्टीज ब्रांड स्टाइल एंड कोचिंग मेथड आगे डिस्कस करूंगा इन सारी चीजों को आप साथ मिक्स करके करोगे तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे फर्स्ट थिंग विच आई डू विद मोस्ट क्लाइंट्स हु जॉइन एफबीई इसकी मैं उनका बैठ के डिफरेंशिएटर फाइंड करवाता हूं पर्सनली एट दिस लेवल ऑल्सो वाई एज ऑफ टुडे अब फ्यूचर में आप कभी ज्वाइन करो आप बोलो वाईपीएस ने कहा था एज ऑफ टुडे व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग बिकॉज आई वांट टू गेट डन विद दिस सून बिकॉज माय टीम इज रेडी नाउ विद दिस फॉर दिस आज की डेट पे मैं खुद बैठ के डिफरेंशिएटर फाइंड करवा रहा हूँ वाई
Because I know this is everything and this create decides your brand direction. ब्रांड डायरेक्शन डिसाइड करता हूं मैं पर्सनली बैठ के इस एज पे नहीं इन द सेंस सी अंडरस्टैंड माय बिजनेस हैज बीन रनिंग फॉर 4 years वी हैव हंड्रेड्स ऑफ केस स्टडीज वी हैव लॉट ऑफ क्लाइंट इंटरव्यूज हियर तो बिजनेस सिस्टम सेट हो गया एंड आई कैन इजीली डेलीगेट बट वन थिंग व्हिच आई हैव रियलाइज्ड इज कि डिफरेंशिएटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू कैन डू एंड दिस कैन ब्रिंग डे एंड नाइट डिफरेंस सो दैट्स व्हाई ऑनबोर्डिंग में अभी फिलहाल डिफरेंशिएटर मैं फाइंड करता हूँ नेक्स्ट थिंग विच इज हैपनिंग राइट नाउ इज ट्रस्ट रिसेशन अब ये चीज मैं बता देता हूँ यार इंटरनेशनल मार्केट्स को भी मैं बहुत बार स्टडी करता हूँ इंटरनेशनल मार्केट्स में ना ट्रस्ट इंटरनेशनल मार्केट्स पिकअप होने स्टार्टेड 2016 में और उनमें ट्रस्ट रिसेशन आया 2025 में ठीक है हमारी इंडस्ट्री पिक होनी स्टार्ट हुई है 2020 में हमारी इंडस्ट्री में 2020 24 में ही आ गया ट्रस्ट रिसेशन तो वन थिंग व्हिच आई हैव रियलाइज्ड विद द इंडियन मार्केट इज दैट कस्टमर्स आर वेरी स्मार्ट एंड कस्टमर्स डोंट ट्रस्ट दैट मच तो अब फिलहाल क्या है ट्रस्ट रिसेशन मतलब वैसे भी जनरली मैंने क्या देखा इंडियन मार्केट में कि पीपल आर वेरी स्मार्ट इंडियंस आर वेरी स्मार्ट इंडियन कस्टमर्स आर वेरी वेरी स्मार्ट आप कभी ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकते उनको कोई स्क्रिप्ट यूज कर ली कुछ ऐसा कर दिया नहीं यू कांट मेक देम यू कांट सिंपल से टर्म्स में है कि आप कस्टमर को बेवकूफ नहीं बना सकते एंड अब क्या हुआ है कि जो स्पेंडिंग पॉपुलेशन थी उनमें से आधे लोगों ने या तो ऑनलाइन कोचिंग ले ली है या गुड एक्सपीरियंस आया है तो दे वुड गो बैक टू द ओल्ड कोच अगेन या बैड एक्सपीरियंस है तो दे वोंट ट्रस्ट यू ठीक है तो अब ये चीज हुई है कि बेसिकली ट्रस्ट सेशन हो गया तो ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत टाइम लग रहा है राइट सो यू नीड टू शो अप एवरी डे यहाँ आपका ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अब मैं इधर एक चीज समझा देता हूँ वेयर कोचेस गो रॉन्ग है इसकी ऑर्गेनिक रीच कम हो गई है तो कोचेस सोचते हैं कंटेंट क्यों बनाए समझ रहे हो कंटेंट आपने इसलिए बनाना है बिकॉज जो आप एड से भी बंदे भेजोगे उनको भी have to make them trust you राइट एग्जाम्पल देता हूँ आप मेरी ऐसे आज 10 YouTube वीडियो देख लो या 2 YouTube वीडियो देख लो आपको समझ आ जाएगा आई नो माई शिट आई नो बिजनेस राइट इट्स एज सिंपल एज दैट व्हाट्सएप मेरे इंस्टाग्राम पे रील देखो जाके अब सोचोगे ठीक है रील है मे बी स्क्रिप्ट इज कॉपीड मे बी चैट जीपीटी से कुछ उठा लिया वट एवर राइट तो ट्रस्ट बिल्ड होता है व्हेन समवन कंज्यूम्स मोर ऑफ यू सीज मोर ऑफ यू विच कैन बी डन वाया योर ब्रांड ईमेल्स इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड दैट्स इट तो ट्रस्ट सेशन है बहुत तकड़ा इंडियन मार्केट वैसे भी थोड़ी ज्यादा वो है साथ में दो चीजें और चल रही है रिसेशन से मेरे को याद आया स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट गिरी हुई है तो जो आपकी स्पेंडिंग पॉपुलेशन है दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड राइट नाउ राइट एक और भी चीज बता देता हूँ ओजेम्पिक ओजेम्पिक आ गया है ओजेम्पिक के मोंजारो आया है 14K पर मंथ एंड फैक्ट ऑफ द मैटर इज इट्स वेरी इजी टू लूज वेट हल्का सा इंजेक्शन लगाया हर हफ्ते यू वोंट गेट एनी हंगर एंड क्रेविंग्स इस पे भी मैं किसी दिन ट्रेनिंग और बनाऊंगा बिकॉज आई एम रिसर्चिंग द टॉपिक एंड रिसर्चिंग की एग्जैक्टली इंडस्ट्री में हमें एज फैट लॉस कोचेस क्या करना चाहिए आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग फर्स्ट आई शेयर इट विद माय एफबी ग्रुप इन द नेक्स्ट इवेंट वी हैव इन द नेक्स्ट 8 weeks बट आई शेयर इट विद यू गाइस आल्सो समटाइम बट ऑब्वियसली नॉट इन डेप्थ बट हाँ ये भी इसका भी सोल्यूशन मैं निकाल के दूंगा बट इट्स ऑलवेज रिजर्व फॉर माय क्लाइंट्स ऑल्सो एक चीज मैं बता दूं पुशी कन्वर्जन टैक्टिक्स आर नॉट वर्किंग एनीमोर पास्ट में कुछ लोगों के लिए ये चीज वर्क कर रही थी हमारे लिए तो कभी नहीं वर्क करी टू बी ऑनेस्ट ट्रेन बाय वाईवीएस पे पहले क्या होता था कि आप कुछ भी स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो ऑन कॉल पेमेंट ले रहे हो अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो फेक वो सारी चीजें चल रही थी इट्स नॉट फक यू इट्स फेक अर्जेंसी कर रहे हो एवरीथिंग दीज थिंग्स वर वर्किंग अब क्या हुआ है कि अब वो ये चीज आपके कस्टमर इतना ज्यादा सोफिस्टिकेट हो चुका है कस्टमर ने ये चीज स्कीमें भी इतनी देख ली है कि योर कस्टमर इज लाइक आई डोंट वांट बुलशिट एंड राइट नाउ वी आर एट लेवल 5 ऑफ कस्टमर सोफिस्टिकेशन हाईएस्ट लेवल होती है राइट एंड दैट इज व्हाट पुशी कन्वर्जन टैक्टिक्स नहीं वर्क कर रही तो आप बहुत कोचेस ऐसे हैं जो बेसिकली सेल्स सेल्स स्क्रिप्ट के दम पे सेलिंग करते थे या सेल्स मेथडोलॉजी के बेसिस पे सेलिंग करते थे वो अब नहीं हो रहा है सो दैट इज वन थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड दैट्स व्हाट एंड
दैट इज व्हाट। आगे नेक्स्ट उस पे चलते हैं। ट्रेडिशनल वेबसाइट फनल्स आर नॉट वर्किंग फॉर 99% ऑफ कोचेस। 99% ऑफ कोचेस क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज आई नो अ फ्यू कोचेस हु आर डूइंग क्रेजी with their website funnel, VSL funnel, webinar and stuff like that. But 99% coaches के लिए नहीं work कर रहा. Why? Because your customers understand now. They have gone through this process multiple times. They know if there's a webinar or if there's a VSL, end में you will be selling something. So they indirectly now understand कि भाई ये kind of एक ये सेल्स ट्रैप है। आई वुडंट यूज द वर्ड सेल्स ट्रैप, बट एक्सप्लेन करने के लिए, राइट, कि सबको पता है कि अगर आप किसी को वेबसाइट पे भेज रहे हो तो वो बंदा आपको क्या नाम है सेल करेगा, पिच करेगा। तो व्हेन समवन नोज के एंड में किसी ने सेल करना है तो दे आर ऑलवेज लाइक कि यार दे काइंड ऑफ रिफ्रेन फ्रॉम दैट स्टफ, इसलिए दैट्स व्हाई दे आर नॉट, they don't visit your funnels for the most part. And if they do, they don't consume the content because they have consumed similar content hundreds of times. One sad thing about this is ki we can't manufacture unique content. Example देता हूँ, जैसे this is a B2B niche. यहाँ पे whatever system I talk about, that's my thought process. That's something which I'm building, which I have been building since years, right? यहाँ पे मैं चीज बिल्ड कर सकता हूँ, बट फिटनेस पे इट्स लाइक फैट लॉस करवाना इज साइंस ऑलरेडी, राइट? उसमें मैं डायरेक्टली कुछ इतना नहीं बिल्ड कर सकता कि कोई न्यू इन्फॉर्मेशन जिसके लिए बंदा किसी वेबसाइट पे जाए एंड स्टफ लाइक दैट, राइट? तो 99% कोचेस के लिए नहीं वर्क कर रहे, कुछ कोचेस के लिए कर रहे हैं, बट दे आर नेक्स्ट लेवल एक्सपर्ट्स एट व्हाट दे डू। तो ये भी चीज अंडरस्टैंड करो, राइट? आईजी फनल वर्क कर रहा है क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम पे पीपल आर ऑलरेडी देयर। पीपल आर ऑलरेडी देयर। ठीक है, अब लोग ऑलरेडी हैं उधर, उनको एड दिख जाती है, कंटेंट या स्टोरीज आपकी, दे आर ऑलरेडी देयर फॉर सम रीजन। तो इसलिए देन इंस्टाग्राम फनल्स वुड ऑलवेज आउट परफॉर्म अकॉर्डिंग टू मी फॉर मोस्ट पीपल, नॉट एवरीबडी बट फॉर मोस्ट पीपल, राइट? नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब मैं आपको बताता हूँ, लास्ट मंथ ट्रेंड बाय वाईवीएस पे वी हिट $1 million। पहले जो आपने $1 million वगैरह देखा होगा, दैट इंक्लूडेड एफबीए एंड ट्रेंड बाय वाईवीएस। बट लास्ट मंथ हमने ट्रेंड बाय वाईवीएस पे भी $1 million रन रेट हिट किया। ठीक है, दैट इज ऑसम। एंड यू नो व्हाट न्यू थिंग आई डिड? ना मैंने एड स्पेंड बढ़ाया है, ना मैंने कोई नया कंटेंट बनाया है, ना मैंने कंटेंट वॉल्यूम बढ़ाई है, ना मैंने कोई नई स्कीम पाई है, ना मैंने कुछ किया है। एंड दैट मंथ वाज मार्च, राइट? वी हैड आवर बिगेस्ट मंथ। एंड हाउ डिड आई हिट दैट? By just doing the basics consistently. And the basic was, मैंने जनवरी में डिसाइड किया कि यार मैं हर मंथ 4 to 8 ट्रांसफॉर्मेशंस डालूंगा, न्यू खतरनाक, 4 मिनिमम। एंड लास्ट ईयर मैंने देखा कि 2024 में आई डिड ग्रेट नंबर्स बाय जस्ट पोस्टिंग 2 to 3 ट्रांसफॉर्मेशंस। टू ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मूड के हिसाब से चल रहा था। अब मैंने इस पे सीरियस सिस्टम बना दिया। नाउ लॉट ऑफ यू गाइस वुड थिंक यार, व्हाई डोंट आई टेक माय बिजनेस दैट सीरियसली? दैट्स बिकॉज आई हैव बीन इन दिस बिजनेस फॉर 8 9 years। अब बहुत इजी हो गया मेरे लिए, राइट? सो इफ आई वांट टू स्केल फर्दर आई कैन, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज वी रीच आवर कैपेसिटी एवरी मंथ। आई डोंट वांट टू स्केल दिस बिजनेस एनीमोर, राइट? सो दैट इज व्हाट। एंड सिर्फ बेसिक। अब इसमें मैं किस पॉइंट पे आ रहा हूँ? अब मैंने काफी कोचेस ऐसे देखे जिनका 2024 दिसंबर तक दे वर डूइंग अमेजिंग। उसके बाद एड चलनी कम हो गई, कंटेंट कम हो गया, लोग कॉल पे आ रहे हैं, कन्वर्ट नहीं हो रहे, लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, लोग कह रहे हैं अगले महीने स्टार्ट करेंगे, लोग कह रहे हैं ट्रैवल है, लोग बहाने मार रहे हैं। व्हाई इज दैट हैपनिंग? हर केस में मैंने दो चीजें कॉमनैलिटी देखी कि एक तो वो लोग अपना ब्रांड ठीक डायरेक्शन में नहीं बिल्ड कर रहे थे, दूसरा उनके पास खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं थी पोस्ट करने के लिए। सो दैट इज व्हाट, उनके पास खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं थी पोस्ट करने के लिए। एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स which made me realize कि यार wow, so that is what, brand and transformations, so that is what. And
सिंपल सी चीज है। आज बैठ के, और मैं ये चीज बता देता हूँ, बिकॉज आई वर्क विद हंड्रेड्स ऑफ कोचेस एंड आई वर्क विद देम क्लोजली, एंड मेरे कोचेस, द कोचेस हु जॉइन एफबी एंड स्टफ लाइक दैट, आर वेरी ऑनेस्ट विद मी आल्सो। मैं सीधा पूछता हूँ कि यार, बिकॉज आई हैव अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच, मैं सीधा पूछता हूँ, डू यू हैव गुड ट्रांसफॉर्मेशंस, एंड लॉट ऑफ टाइम्स दे टेल मी नहीं है, इवन इफ दे आर मेकिंग लैक्स, 7 lakhs, 10 lakhs a month। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, दैट आपने लॉन्ग टर्म इस गेम में जीतना है, ट्रांसफॉर्मेशंस लाओ एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दोस ट्रांसफॉर्मेशंस। ये नहीं कि यार मैंने तो प्लान बना दिया था, क्लाइंट नहीं फॉलो कर रहा। 80% of the client should be completing your coaching if they are paying you for the coaching, and at least 15% लोग should be postable transformation। खतरनाक 15%। क्या हुआ, आपने 20 बंदे करे अगर ऑनबोर्ड, तो 3 खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास आनी चाहिए। नहीं आ रही, दैट्स एन इशू। अब मुझे पता है 90% कोचेस इस वाली बात को इग्नोर करके आगे निकल जाएंगे, बट आई एम टेलिंग यू, राइट, द कोचेस वेयर आई एम सीइंग नेक्स्ट लेवल रिजल्ट्स आ रहे हैं राइट नाउ ऑल्सो, राइट, आई गिव यू सम एग्जांपल्स। निनी निनी ने अपना फर्स्ट 7 फिगर मंथ हिट किया ड्यूरिंग दिस पीरियड, जब मैं कह रहा हूँ हार्ड हो गया। मृणाली 7 lakhs, आई थिंक 7 lakhs पर मंथ हिट किए। शी लिटरली हैज 4,000 फॉलोअर्स, एंड दीज आर द रीसेंट नंबर्स। हेमंत ने अपना बिगेस्ट नंबर हिट किया इन दिस मंथ because of these reasons, right? So that's something which you need to understand and realize. Game is this: more transformations you post, more trust you have, and this applies to brands like mine also, जहाँ हमारे इतने follower and everything else, right? And that's what I hit my biggest month by just being consistent with these things. Just keep this in mind. And very important, transformations होनी चाहिए. And if your clients are not getting results after paying you, the problem is in you and your service and your team. ऑल्सो कोचेस क्या गलती करते हैं, खुद अच्छे कोच नहीं बने, तुमने नेक्स्ट लेवल कोचिंग नहीं दी, सर्विस सिस्टम्स नहीं बिल्ड किए, आप फिर टीम बिल्ड करते हो, टीम और बेकार काम करती है क्योंकि आपने खुद नहीं किया। दैट्स द प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई एनीवन हु जॉइंस एफबी और एफबी, पहली चीज हम उनकी सर्विस को नेक्स्ट लेवल करवाते हैं, बेटर कोच से गो थ्रू करवाते हैं एंड एवरीथिंग एल्स। चेक इन कैसे करना है, बात कैसे करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेनी है, ऑल दीज थिंग्स वी टीच, because I've seen a lot of good coaches who are like getting transformations also, but don't have these systems, जिसकी वजह से postable transformations नहीं है। Okay, so what is the solution for this? You need a system to work for you, which works on all pillars of your fitness business। पहली बात तो आपको सबसे पहले क्या करने की जरूरत है, अपना डिफरेंशिएटर फाइंड करने की जरूरत है। Who you work with, who you are, your expertise, what makes you unique and different। बहुत बार कोचेस को लगता है मेरे केस में कुछ भी नहीं है, बट आज तक मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं इतनी ऑनबोर्डिंग करी है मैंने पर्सनली, आई मीन 30 मेंबर्स की करी होगी, आज तक एक सिंगल केस ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे मुझे डिफरेंशिएटर नहीं मिला नेक्स्ट लेवल। कई कबार डिफरेंशिएटर एक्सपेरिमेंट करने में टाइम लगता है, बट बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स प्लीज इस पे काम करो। देन डिफरेंशिएटर हो गया, यू नीड टू बिल्ड योर कोचिंग मेथड, बिकॉज कस्टमर जब सोफिस्टिकेटेड है, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि भाई व्हाट मेक्स यू यूनिक, योर कोचिंग मेथड मेक्स यू यूनिक। लोगों को क्या लगता है, कोचिंग मेथड का बस एक नाम रख देते हैं, कुछ भी कूल सा नाम रख देते हैं, लास्ट राइड मेथड टाइप, दैट वुड बी ग्रेट। नहीं, पूरा मेथड बिल्ड करोगे आप पहले, फिर वो कोई भी क्लाइंट ज्वाइन करता है, हम सबसे पहले उनका कोचिंग मेथड बिल्ड करवाते हैं, उसका नेम करवाते हैं, बिकॉज दैट वुड मेक यू स्टैंड आउट, प्लस द डिफरेंशिएटर। नेक्स्ट, लाइक आई मेंशन कि भाई ऑर्गेनिक रीच भी कम है और सिर्फ एड्स पे भी कुछ नहीं होगा, तो वी नीड टू हैव मल्टीपल सिस्टम्स एंड फनल्स इन आवर बिजनेस दैट हेल्प्स यू क्लाइंट गेट clients while building a brand। We do that with our hybrid method। नेक्स्ट, ये तीनों चीजें होगी एंड यू आर बुलेट प्रूफ ऑन ऑल दीज थ्री एस्पेक्ट्स, यू नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग अ हाई परफॉर्मिंग टीम। इस वाले पार्ट पे ना, यू वुड हैव अ चॉइस कि वेदर यू वांट अ लीन टीम वर्सेस अ बिग टीम। ज्यादा रेवेन्यू नंबर सेट करने हैं, ज्यादा कॉल्स करनी पड़ेंगी, वीए का ज्यादा एफर्ट होगा, तो देन यू वुड वांट अ बिगर टीम। वरना a lot of people would be better off having team of 1 to 2 people max, एक वीए, एक असिस्टेंट कोच, दैट्स ऑल, राइट। So, depending upon your case, what kind of business you want to build, higher revenue, higher numbers in the pocket at end of the month, versus higher stress भी होता है उसमें, versus a lean business, थोड़ा आपके हिसाब से चल रहा है, 3-4 घंटे आप काम कर रहे हो, 1% बिजनेस काइंड ऑफ बिजनेस बिल्ड करना है, वो आपने कॉल लेनी पड़ेगी। पहले मैं लोगों को सबको यही करता था कि यार रेवेन्यू की तरफ जाओ, बिल्ड अप बिगर टीम, बट नाउ रिसेंटली आई हैड दिस कॉल विद मृणाली ओनली, एंड आई टोल्ड हर दैट वी हैव टू टेक अ कॉल इन दिस कमिंग मंथ,
She hit her first month of close to 1 crore rupees revenue. I think last number I saw was 7 lakhs and एक दो दिन बचे भी थे month के. तो I think हम 1 crore run rate पे आ जाएंगे. I told her at this stage कि यार now we have to take a call कि यार हमें we want a big team or a lean team. So that is what. Next is setting systems to scale while service going up. भाई ये part बहुत important है. 99% coaches their service goes down when they build a team, but in actuality the opposite should happen. So this part is very important. Next, fill in the gaps. हर स्टेज पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी और गैप फिल करना हो. फॉर एग्जाम्पल, आपने मार्केटिंग फिक्स कर लिया, आपकी कॉल्स बुक हो रही है, फिर आपको शो अप पे बुक करना पड़ेगा. शो अप सही हो गया, मे बी कन्वर्जन इशू आ गया एंड एवरीथिंग एल्स, राइट. सो ये चीज अपने को फिक्स करने की जरूरत है. सो हर स्टेज पे क्या होगा, आपके बिजनेस की गैप्स आएंगे. मतलब डिफरेंशिएटर आपने वर्क करना स्टार्ट किया, नाउ इट्स नॉट वर्किंग, मे बी यूल हैव टू ऐड इन समथिंग. Maybe plus you have to upgrade with the market. एग्जाम्पल देता हूँ यार, हर मंथ हर क्वार्टर हम मिलते हैं विद माय एफबी टीम एंड मैं उनका कंटेंट और एड्स उधर ही सॉर्ट करवा देता हूँ, बिकॉज मुझे पता है घर जाके वो लोग करते नहीं. दीज आर द पीपल हु आर मेकिंग करोड़. मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली क्लोज टू 1 crore रुपीज रन रेट और हायर. इन लोगों की मैं एड्स और वो उधर ही बनवा देता हूँ विद न्यू फ्रेमवर्क्स. एंड वन थिंग व्हिच आई हैव नोटिस इज कि एवरी टाइम आई गेट देयर कंटेंट मेड, content type is totally different because the market is getting different. So, we need to upgrade ourselves with the market, and that's all. And ये चीजें भी क्या नाम है जो आज मैंने आपको बताई हैं सिखाई हैं. These things are also क्या नाम है लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर तक ये चीजें रेलेवेंट ही नहीं थी. But the thing is, we need to upgrade ourselves with the market. And the one leverage my clients and I have is कि my main business is trained by IVS. So I keep on learning those things myself because of my main business. And that's why, my learning is much faster and my clients learn much faster. That's it. Also, this was the review and the scenario. And that's it. Hope you got to value and hope you're excited for our next training. If you want to scale to 1 to 2 crore rupees per annum with us, find the link below and Instagram profile का link होगा हमारी and DM us the word scale. At 10 slots full होते हैं, slot full होंगे तो we'll give you a time when we can onboard you. And when you message us, we are not a sales centric team company. That means we will get on a call with you, but we'll get on a call with you to understand whether it's the best fit for you. Best fit हुआ, we'll onboard you. नहीं हुआ तो good luck. Or you can go your own way and you can keep on consuming our YouTube videos because उधर से वैल्यू मिलती है. But the thing is, obviously, अगर आपको मैं फ्री में इतनी वैल्यू दे रहा हूँ तो imagine what happens when you pay us, right? So do check it out. Also, do check out our other YouTube videos. हाइब्रिड मेथड पे एक बड़ी अच्छी वीडियो है, वो हमारी इंस्टाग्राम लिंक की बायो पे भी है और ऑब्वियसली यूट्यूब चैनल पे भी. चेक दैट आउट. एंड यू कैन डाउनलोड आवर फिटनेस बिजनेस स्केलिंग मैनुअल. ऐसे जैसे ये वाला फ्रेमवर्क है, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है उसमें, ऑल इन वन प्लेस. देयर वुड बी अ लिंक बिलो. And there are detailed client data reviews on our YouTube channel who are hitting crores every year. वो भी check out करो to understand their journey and their detailed case studies. And that is what, guys. Thank you for tuning in. Hope this gave you a lot of value. If there's any question, let me know. And hope you understand the 2025 market scenario. If you're doing principles right, your business would still grow. If you're doing principles wrong, your business would not grow. And, hope this helps. And thank you. And see you. And bye.